ہم دل کی ادا کریں سے سپریم کونسل کے جملہ ممبران کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے مشکل کی اس گھڑی میں شانہ بہ شانہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آپ نیچے چلے جائیں سارے لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن پاک سے. شکور صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں زبیر جنجوہ صاحب کو 4C2 کے پریزیڈنٹ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب آزاد سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ ضرور شریف پڑھ لیں. بسم اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مختصر بات کریں گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہے. ہماری کوشش تو یہ تھی کہ 12 بجے تک جیسے کہ انہوں نے راجہ صاحب نے ٹائم بھی دیا ہوا تھا لیکن یہ معاملات آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا لمبے ہو جاتے ہیں تو نماز سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ امید ہے کہ ہم اس کو تاکہ نماز کے میں حرج نہ ہو. تو مختصراً بات یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے یہاں کھڑے ہیں. سب سے پہلے ہر بندے کے ذہن میں صرف ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ ہمارا حق ہے یہ اگر آپ لوگوں نے اپنے ڈیولپمنٹ چارجز دیے ہوئے ہیں تو یہ کمپنی کی ذمہ داری تھی کہ یہ ساری سہولتیں آپ کو اپنی دہلیز پر مہیا کرتی. یہ ان کے کام تھا. یہ بنیادی طور پر کسی اور کا کام یا ہمارا آج احتجاج کا دن نہیں بنتا تھا بلکہ ہمیں آج یہ صورتحال ہونی چاہیے تھی کہ ہم چودھری عثمان صاحب یا باقی جتنے بھی انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آج ان کو گلے میں ہاتھ ڈالتے اور ان سے افتتاح کرواتے کہ یہ بجلی کا آج آپ افتتاح کر رہے ہیں. الٹا ہم ان کے خلاف آج احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ عثمان صاحب ایک اچھا عمل دکھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت نصیب فرمائے کہ وہ غریب لوگوں کی دعائیں لے سکیں. مجھے یقین ہے کہ ان تک یہ آواز پہنچ چکی ہوگی اور امید ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایکشن بھی لے لیا ہوگا کیونکہ ان کے بارے میں عمومی تاثر بہت پازیٹیو ہے. عام اگر طبقے سے بات کی جائے تو چودھری عثمان صاحب کو عام طور پر لوگ بہت اچھا ان کے بارے میں ریمارکس دیتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ترقی پسند بندے ہیں اور وہ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ رہائشیوں کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں اور مجھے کو دیکھ کر اب صرف آخر میں 4C2 کے صدر ہونے کے ناطے میں ایک دفعہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ فیز 7 والے کریں گے
पूरे 4C2 को हम इंशाल्लाह इनके साथ रखेंगे। किसी सूरत में भी अपने रिहायशी भाइयों और अपने रिहायशी जो लोग हैं गोरी टाउन के, जो भी जहाँ से भी जिस भी सेक्टर से ताल्लुक है, हम इंशाल्लाह उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम ना इंसाफी करेंगे, ना किसी के साथ जुल्म करेंगे, लेकिन अपना हक किसी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं कि कल जो हमारी एक मीटिंग हुई थी सुप्रीम काउंसिल और जॉइंट एक्शन कमेटी की रात को 12-1 बजे, उसमें उस्मान साहब ने भी अपना नुमाइंदे भेजे हुए थे। फैसल साहब अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं वो। तो इस सिलसिले में जो हमने मकसद है वहाँ पे जो भी हमारी तहरीर हुई है, जो भी बात हुई है, वो हमारे मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों में घूम रही है। वो आज का मीडिया का दौर है, वो छुप नहीं सकती है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी कन्फर्म किया है, लेकिन सब लोगों को इसका इल्म हो चुका। हम ये कह रहे थे कि आप सब लोगों को बुला के यहाँ पे इन्फॉर्म करें और आप उसका एतमाद भी हम दें कि ये बात हुई है हमसे। उसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान भी यहाँ पे मौजूद हैं और सुप्रीम काउंसिल के बाबर सती साहब और शकूर साहब जो हमारे साथ पेश रहे हैं हर जगह पे, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने भी बात करनी है आपसे तफसील से। इस वजह से यहाँ पे कम तादाद में लोग इस वजह से आए। बाद लोग अभी भी फ़ोन कर रहे थे, असल में हमारे 2 बजे का प्रोग्राम था यहाँ से निकलने का। वो लोग इंतज़ार करें कि नमाज़ पढ़ के हम आएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अब पता चल चुका है। तो इसके बारे में मज़ीद आप से बात करेंगे शकूर साहब, बाबर सती साहब और महबूब साहब, वो आपको सारा लाया में बताएंगे। अभी तारक साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों का बेहद मशकूर हैं कि आप लोगों ने हमारी बड़ी शॉर्ट कॉल पे यहाँ पे आप तशरीफ लाए। हम खुसूसी तौर पे सुप्रीम काउंसिल के और 4C2 से और बाकी जो फेजिस के सुदूर और जदा सेक्रेटरी का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर मुश्किल की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ पे फेज 7 के रिहायशियों के हम दिल से मशकूर और ममनून हैं कि उन्होंने हमारी हर काल पे लब्बाई कहा है और उन्होंने ये साबित किया है कि हम अपना हक लहरा जानते हैं। ये हमारा बुनियादी हक था और फेज 7 के गयूर वासियों ने आगे बढ़ के हर लम्हा हर घड़ी हमारा साथ दिया है। इस पे हम आप सबके बेहद मशकूर और ममनून हैं। यकीन जानिए कि आपके बगैर कमेटी कुछ भी नहीं है, आपके बगैर यहाँ के डीलर कुछ भी नहीं है, आपके बगैर क्या कंपनी गोरी कंपनी भी कुछ भी नहीं है। आप लोग असल बेस हो और हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि हमने जब जब आपको कॉल दी आपने आगे बढ़कर लब्बाई कहा। इस सब पे हम आपको दिल की अथा गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी इसी तरह जब भी कोई वक्त पड़ा तो आप हमें लब्बाई कहेंगे। बस मुख्तसर अल्फाज में आपको शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इसी पे इत्तेफाक करता हूं। अब मैं शकूर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सारे बच्ची सब 2 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप फेज 7 के जो रिहायशी हैं जिन्होंने इतने अरसे से तकलीफें उठाई हैं और यहाँ पे इन मुश्किलात के बावजूद इकट्ठे होकर और अपनी आवाज़ बुलंद की, आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपकी कमेटी हम तक अप्रोच की सुप्रीम काउंसिल के तमाम मेंबरान ने, जिनके अपने बहुत सारे मसाइल थे कंपनी के साथ और चीज़ें थी, लेकिन सबको छोड़ के 1 पॉइंट एजेंडे पे इस बात की खुशी हुई कि बहुत कम पैसों पे आप लोगों की जदोजहद की वजह से बिजली लग रही थी। तो उस पे ज़ाहिर है कंपनी की तरफ से भी मसाइल आए। हमारे तमाम कायदीन ने, दोस्तों ने, सब ने मिलकर लगातार कोशिश की। उसमें सारे ऑप्शन मौजूद थे। 2.5 लाख के ऑप्शन सबसे पहले होते हैं। बड़े बाइज्जत तरीके के साथ सबसे बात शुरू हुई, जो कुछ मिले पैसे कुछ बकाया रह गए थे। फिर एहतजाज की कॉल हुई जो आप लोगों का हक था। इसी दौरान भी जॉइंट एक्शन कमेटी है जो गोरी VIP से लेके फेज 7 तक हमारी चल रही है, उनके लोग सारे दोस्त रास्ते में थे। और जब आगामी हालात होते हैं तो जाहिर सी बात है जिस वक्त भी मौका मिलता है, हम सब का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को पैसे मिलने चाहिए, बिजली लगनी चाहिए, आपका मसला हल होना चाहिए। और रात को 12 बजे 1 बजे के बाद फिर हमें जिस बात का पता चला कि उनकी तरफ से कुछ दोस्तों ने मुस्बत रोल प्ले किया और बैठ के बात की, जिसकी तफसील आपको शकूर साहब, बाबर साहब और महबूब साहब भी बता देंगे। इंशाल्लाह ये आपका मसला अगर हल होता है तो हम सब लोग यहाँ पे मिल के, किसी का किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ पे हमने रहना है, आगे भी जाना है। शुक्रिया का प्रोग्राम भी करेंगे सारे मिलके, उस्मान साहब हो, रहमान साहब हो, जहांगीर साहब हो, जितने लोग भी हों। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो उस्मान साहब ने वादा किया है, जो बात किया है, उनके नुमाइंदे फासिल शहजाद साहब को शुक्रिया, यहाँ पे आए हुए हैं, रात को भी हमारे साथ थे।
کہ اللہ ताला करे ये मसला हमारा हल हो और आगे भी जो कमी पेशी हो उसमें सारे मिलकर मुस्बत रोल प्ले करें। और ये आपका रहायशी हैं, इनको खराज तज़ीम पेश करता हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, डिमांड नोटिस इशू कराया था इन्होंने बिजली का। ये कोई मामूली काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। और दूसरा, इन्होंने अपने हक के लिए खड़ा होकर ये साबित कर दिया है, और आपने देख भी लिया है कि जब लोग अपने हक के लिए खड़े होते हैं तो सारे उनके मसले मसाइल हल हो जाते हैं। ये आपका हमारा हक है, ये किसी का एहसान नहीं है। डेवलपमेंट चार्जेस जो लेते हैं ये उनका मकसद ही ये होता है गलियां नालियां बिजली गैस पानी मुहैया करती है कंपनी। तो रात को मैं मीटिंग में तो नहीं था, अब मुझे नहीं पता कि बकाया कितने पैसे रह गए, लेकिन मैं तो ये चाह रहा था कि ये सारे कंपनी फौरन पैसे अदा करती 4 करोड़ 37 लाख रुपया। ये करने की नौबत ही ना आती। ये इनके आपस के जो मामलात हैं ये आपस में हल करें। इन्होंने सारों ने मिलकर पैसा इधर से खाया हुआ है। अगला जो राय अमल है वो होगा मुतासरीन का इंशाल्लाह। मुतासरीन जो 5 साल से 7 साल से रुल रहे हैं यहाँ पे, 15 से 20 लाख रुपया गरीब लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई हुई है। तो अब ये कंपनी के तीनों मालिकान चौधरी उस्मान, चौधरी रहमान, राजा जंगीर को मैं ये वार्निंग देता हूँ, और ये मैं उनको ये बरमला कहना चाहता हूँ कि अगला जो आपका एहतजाज के लिए तैयार हो जाए, जो आपने मुतासरीन का माल खाया हुआ है, ये भी जो पैसे बकाया रहते हैं ये आपने देने हैं। बिल्कुल, ये और कोई नहीं देगा। ये पैसे जो बकाया रहते हैं ये डिमांड नोटिस आपने देने हैं। ये आपने माल खाया हुआ है लोगों का, जो है ना डेवलपमेंट करोड़ों अरबों रुपए आपने डेवलपमेंट की मद में लिए हुए। गरीबों को हक नहीं खाओ। तो इसके बाद कोई इन्होंने एहसान नहीं किया, कोई 50 लाख दे रहा, कोई 80 लाख दे रहा, कोई 90 लाख दे रहा। वो अल्लाह के बंदों 4 करोड़ 37 लाख रुपया था, ये तुम्हारे लिए क्या चीज है? ये आप लोगों ने करोड़ों अरबों की मद में आपने इधर से डेवलपमेंट फंड के पैसे इकट्ठे किए हुए हमारे सामने। तो आप कभी 4 करोड़ 37 लाख देते हुए जो है ना आप वजनी हो रहे हैं। इंशाअल्लाह जो है ना ये जो पैसे रह गए हैं फौरन अरेंज करें इन पैसों का, और इसके बाद तैयार हो जाए अगले एहतजाज के लिए जो मुतासरीन का। रहमानिर्रहीम। माज़रत सामीन, फेज 7 के मेरे भाइयों दोस्तों और फेज 4C2 के हमारे सदर साहब और दीगर हमारे सुप्रीम काउंसिल के हमारे अरकान और जिम्मेदारान, जिन्होंने इस अनथक मेहनत के जरिए आप भाइयों का हमने किसी वक्त में भी जो है वो पीठ नहीं दिखाई, बल्कि हमने सीना तानकर उनसे बात की और कोई लिहाज किए बगैर उनको हमने बरमला कंपनी के ओनर से कहा है कि आपने तो फिर थोड़ा सा लचक दिखाई है, लेकिन हम इस लचक के भी हक में नहीं थे कि इनको लचक दी जाए, इसलिए कि डेवलपमेंट चार्जेस जो वसूल करता है, और डेवलपमेंट चार्जेस ये हमारे साथ जो मायदे हुए थे वो बिजली और गैस की सप्लाई लाइन ये बिछाने के हुए थे, ये इनका हक बनता था कि वो अदा करें और लोगों को इन मसाइल में न डालें कि ये एहतजाज करें और अपने घर बीवी बच्चों को मुलाजमतों को छोड़कर सारे काम काज छोड़कर जो है वो इस काम के पीछे लगे। ये इनका बुनियादी हक था और फंडामेंटल राइट्स था, ये हमारे दोस्तों का भाइयों का इस फेजेस का जो इनको अदा करना था। लेकिन अफसोस है कि बीच में डेडलॉक आ गया और डेडलॉक के नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई और आप लोगों को जो तकलीफ दी, आप तशरीफ लाए, आज हमारा एहतजाज था, लेकिन रात को मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी जो है वो बुर्दबारी का मुजाहरा किया कि इन्होंने आपकी कमेटी के साथ इन्होंने राब्ता किया और वहाँ पर बैठकर हमारे बेशुमार रात को जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो ये फैसला हुआ कि अच्छा जी आप
जो है पहले 40 लाख से शुरू हुआ और फिर 50 लाख पे जाके आपकी कमेटी की रजामंदी से फिर हमने इसको एग्री किया। वरना हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये ऐलान करते हैं, कहते हैं कि ये हक इनका था 4 करोड़ 37 लाख देने का, रिहायशियों का कोई हक नहीं था। लेकिन आप पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं कि आप मुतासरीन हैं, इसलिए कर रहे हैं कि आप अंधेरों में हैं, और जो अंधेरे में होता है, जिसको भूख लगी होती है ना, उसी को मालूम होता है। जो जिसका पेट भरा हो उसको खाली पेट वाले की कदर नहीं होती। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इसलिए ये भी कंपनी ने अच्छा इक़दाम किया है कि उन्होंने आगे बढ़कर आज रात को जो है इस मसले को समेटने की जो है वो आगे बढ़कर इन्होंने हमसे राब्ता किया, और इस सारे सिनेरियो में जो इनसे इन्होंने पैसे देने का जो ऐलान किया, जो चेक दिए हैं, वो जो आपकी डेट से 28 तारीख है, 28 तारीख से तक जो है ये सारे पैसों का पे ऑर्डर जो है मुकम्मल करने की जिम्मेदारी है इनके ऊपर। अगर खुदा न ख्वास्ता इसमें लीतो लाल किया गया तो पूरा गोरी टाउन का नुमाइंदा वो वहाँ पे मौजूद थे हम लोग, और इंशाअल्लाह ताला फिर बचने की कोई सूरत नहीं है, और कोई हम इसके ऊपर जो है वो इनको मजीद आगे टाइम देने के भी बिल्कुल किसी तौर पे हक में नहीं है। अगर डिमांड नोटिस जाया हो गया तो ये आपकी और हमारी जो है नाकामी भी होगी और फिर ये नुकसान भी होगा। ये कंपनी हजरात जो मालकान हैं वो इस सूरत हाल को समझे और इस पर गौर करें कि ये आपका काम था जो ये आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इसमें भी रखना डालेंगे तो ये बड़ा जुल्म होगा और ज्यादती होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ चौधरी उस्मान साहब से भी और दीगर जितने हमारे मालकान हैं, चौधरी अब्दुल रहमान साहब है, राजा जंगीर साहब है और इसी तरह से सफीर अकबर साहब है, कि वो आगे बढ़कर जो है वो इन भाइयों का और इन फेसेस का जो है आप मालिक होने का दावा करते हैं। तो फिर इस मालिक होने के लिए जरूरी होता है कि मालिक का काम है देना, तो दे फिर। तो इसलिए जो है ये इसमें कोई हम कमी बेशी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम काउंसिल जो है वो शुरू दिन से आपके साथ खड़ी है और किसी मौके पर भी हमने आपको न डांच किया, न कहीं को सियासत की, न ही हमने कहीं को पीठ दिखाई। आप हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए काम किया, आपके ऊपर भी एहसान नहीं किया। बिल्कुल सीधी साफ बात है कि हम चाहते हैं कि हम अपनी कब्रों को ठीक करें, हम चाहते हैं कि हम अपने आखिरत को ठीक करें, और जिसको मरने का फिक्र है और मरना याद है तो मेरे ख्याल है कि उसको जो है वो इस तरह की बातें वो डेड लॉक पैदा करना और इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। मरना तो हर इंसान ने है, हर नबी नहीं रहे दुनिया के अंदर, तो बाकी हम किस बात की मूली है, हर एक ने जाना है। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि इबरतनाक मौत ना आए, किसी का हक खाकर मौत ना आए और किसी का जो है वो ज्यादती करके मौत ना आए। ये देना पड़ेगा वहां पर, इसके बगैर जो है वो जनाजा भी जायज नहीं होता। अगर किसी का हक जो है मारा हो तो वो कब्र में उतारना, ये हमने तो अब मुसलमान होने का नाते हमने अपना वो तरफ गढ़ दिया है दीन को, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक जो है उस वक्त तक उस मैयत को दफनाया नहीं जाता था जब तक उसके जिम्मे कर्ज था तो वो अदा नहीं हो जाता। और बास मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जेब से उस जो मैयत का कर्ज अदा किया, फिर उसका जनाजा पढ़ाया, या साहबा कराम जो थे साहिब हैसियत थे उनसे फरमाया कि आप आगे बढ़ के इनके इसका कर्ज अदा कर दे अगर कोई गरीब है तो। मेरे भाइयों ये मामूली बात नहीं होती। मुसलमान के लिए जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसका ये सोचने का मकाम होना चाहिए कि दूसरे का हक नहीं मारना और किसी के साथ नाजायज नहीं करनी और किसी के साथ ज्यादती जो है वो अल्लाह को किसी सूरत को बोल नहीं है। बेशक कोई हज करता भी नहीं, बेशक कोई 5 वक्त का नमाजी हो, लेकिन किसी का हक मारा होगा ना, अल्लाह उसकी नमाजें जो है काले कपड़े में लपेट कर उसके मुंह के ऊपर मारते हैं। तो इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं अपने भाइयों से कंपनी मालकान से अर्ज करता हूं कि आप किसी का हक जो है वो अव्वलीन आपके ऊपर फर्ज है, तो इसलिए वो अदा करें ताकि आपकी इज्जत भी हो, नेक नामी भी हो। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। साहब अब मैं 2 मिनट के लिए राजा जुनैद साहब से गुजारिश करता हूँ फेज 7 से कि वो अपनी रहीम। मैं सबसे पहले अपनी सुप्रीम काउंसिल और जॉइंट एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
کہ انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ اس مہم پہ چلے اور انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا. اور اس کے بعد میں رائشوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑھ چڑھ کے کمیٹی کی مدد کی ہے. اس وجہ سے ہم آج انشاءاللہ کامیاب ہو رہے ہیں. رات کو ہمارے مذاکرات چلتے رہے, 1-1:30 بج گیا تھا اور چودھری عثمان صاحب نے 50 لاکھ کا ہمیں چیک دیا ہے جو کہ اگلی ڈیٹوں کا ہے. اب وہ جب کلیئر ہوگا ٹھیک ہے, پھر وہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے, ہر ایک شیخ سے آپ کو آگاہ کریں گے. اور اس کے بعد میری عبد الرحمان صاحب اور سلمان صاحب سے گزارش ہے کہ جو پیسے ان کے رہ رہے ہیں تقریباً 1,20,00,000 ان کا بقایا ہے, وہ بھی ہمیں ادا کر دیں. اور رائشوں سے میری التماس ہے کہ جب ہم کال دیں اس میں گٹھے ہو جائے کریں, یہ آپ سب لوگوں کا حق ہے. اور جنہوں نے پیسے نہیں جمع کروائے وہ جلد سے جلد جمع کریں. یہ پہلے ہم نے لینے نہیں تھے, یہ کمپنی والوں نے سارا ڈیمانڈ نوٹ عبد الرحمان صاحب نے کہا تھا میں جمع کرواؤں گا. پھر اس میں 5 حصے کیے گئے اور ایک حصہ رائشوں پہ پڑا جو کہ 50,000 روپے. اور 50,000 میں بھی اگر ہمیں بجلی لگتی ہے ہم متاثر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کمپنی والوں کو ابھی ایک ڈیمانڈ نوٹ ہمارا اور آنا ہے جس کی تقریباً 4-5 کروڑ کا ہوگا. وہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کمپنی والے ہماری مدد کریں گے اور پے کر دیں گے. اور جن لوگوں نے ابھی تک پیسے نہیں جمع کروائے, کیونکہ ہمارا ڈیمانڈ نوٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ ٹائم نکل گیا تو وہ جو ہم نے پیسے جمع کرائے ہیں 2.5 کروڑ روپیہ وہ بھی ہمارا ضائع ہو جائے. اس لیے اپنی گلیوں میں نکلیں, اپنے پڑوس والوں کو, ساتھ والوں کو, سب کو کہیں کہ جی آئیں یہ پیسے جمع کروائیں اور انشاءاللہ پھر کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. اس کے بعد رہ گئے تھے عثمان صاحب. تو عثمان صاحب سے جب کل یہ میرے پاس آئے اپنا آپ کی کمیٹی کے لوگ جس میں اشفاق صاحب اور جنید صاحب اور باقی ان کے ساتھ جو لوگ تھے, تو انہوں نے آ کے ڈیمانڈ رکھی کہ آپ ہمارے پروٹیسٹ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اس کو سپورٹ کریں. تو میں نے جب ان کی بات سنی میں نے کہا یار آپ کی اگر کوئی بات عثمان کے ساتھ طے ان سے بات کر لیتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سن لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد ہم احتجاج میں جائیں گے اور پھر انشاءاللہ مضبوط طریقے سے کریں گے اگر وہ کسی بات پہ نہیں آتے. چودھری عثمان صاحب سے رابطہ ہوا, انہوں نے اس میں ان کے 2 تحفظات تھے جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے. ایک ان کا بیسک یہ تھا کہ میرا اس میں جو آ رہا ہے اپنا اکبر انقلاب وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے, مجھے اس کی آپ چھوٹی دے دیں تو میرے ذمہ جو رقم ڈالیں گے میں دینے کو تیار ہوں. تو وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. جب ہم بیٹھے اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے آدھا گھنٹہ دیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں ان چیزوں کو کہاں تک یہ جا رہی ہے سپلائی. تو اس میں اس کا اکبر انقلاب شامل تھا. تو ان کو ہم نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور پھر اس کے بعد ساری کابینہ ڈیلر ایسوسی ایشن پوری کی پوری وہاں پہ ہم سارے موجود تھے. 40 سے 45 لوگ موجود تھے رات کو جب سارے مذاکرات ہوئے. اس میں انہوں نے آگے بڑھ کر چودھری عثمان نے کہا جی میں ویلفیئر کے کام پہلے بھی کرتا رہا ہوں گوری میں, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, یہ بھی ایک ویلفیئر ہے, میرے اسے میں نہیں بھی ڈلتا ہوتا تب بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. انہوں نے اپنا جو اس میں کردار تھا وہ ادا کیا. رات کو ہمارا ان کے ساتھ یہ ایک معاہدہ ہوا جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور ڈیلر کے جو سپریم کونسل ہے اس کے نمائندے موجود تھے. اس میں آپ کی کمیٹی بھی شامل تھی, فیز 7 کے رہائشی بھی شامل تھے. اس میں یہ سب کے سائن اس پہ موجود ہیں. انشاءاللہ اس معاہدے کے سارے فریق پابند ہیں اور اس کو ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ امپلیمنٹ کرائیں گے. اور اس کی گارنٹی کے طور پر کیونکہ رات کا ٹائم تھا, رات 1 بج گیا تھا, تو اس میں ہم نے پھر اس ٹائم پے آرڈر اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھی. تو ہم نے ان کو 3 قسطیں کی سہولت دی ہے چودھری صاحب کو. انہوں نے پہلا چیک ہمیں دیا تھا 20 لاکھ روپے کا اور یہ چیک 20 تاریخ کو وہ ہمیں ڈرافٹ دیں گے اور پے آرڈر دیں گے. پے آرڈر کے بعد یہ چیک ہم ان کو واپس کر دیں گے. اس کے بعد دوسرا چیک انہوں نے دیا ہے 20 لاکھ کا, یہ 23 تاریخ کو وہ ڈرافٹ دیں گے. 20 کے بعد 2 دن بعد 23 کو اس کا ڈرافٹ دیں گے. یہ پھر اس کے بعد 40 لاکھ ان کی اماؤنٹ ہمارے پاس آ جائے گی اور 10 لاکھ ان کو ہم نے جو ہے نا وہ
30 तारीख उन्होंने इस पे डाली है, लेकिन इसमें भी बात जा रही है कि हम 27-28 को इसकी भी पेमेंट उनसे करवा के, क्योंकि आपकी मेरा 28 तारीख है उसकी जमा कराने की, तो इसकी भी वो रात को 30 इस पे डाली थी, लेकिन इसकी 27-28 जो भी डेट होगी वो उस डेट तक ये भी पेमेंट क्लियर करवा के हम उससे, तो इंशाल्लाह अब हमारी किसी से कोई दावत नहीं है। गोरी टाउन हम सबका घर है, कोई फेज किसी से डिस्कनेक्ट नहीं है, हम सब लोग कोई 5A में रहते हैं, 4A में रहते हैं।